किथे टुर गए हो सारे अल्लाह लियो। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। मौलवी साहब बुग़्ज़े आमद बड़ी गंदी चीज है। कल भी एक बंदा ਅੱਛਾ कल भी एक बंदा मतलब गल कोई होर हो रही है तो उन्होंने अपना बुग़्ज़ याद आ गया। अज भी एक बराड़ लगी सी ते गल कोई होर हो रही सी ते उस बंदे ने भी अपना बुग़्ज़ याद आ गया। हिसाब लाओ ये हालात ने साडे मुसलमानां दे। ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਡੋਲੇ ਨਾਲ। हाँ नहीं अमर नज़ीर तो मशहूर है, मरज़इयां वाल मशहूर तो है ही है वे, अपने वाल भी मशहूर है। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ, ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਨ आज भी जनाब मुसलमाना ने एक दूजे ढाया सी, गिरबान तो फड़िया सी, दना दन धोबी काट मारी आउंदे सन पे। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਾ ਦਮਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ। अच्छा मेरे कुछ शोर सी तो मैं ਤਾਂ म्यूट ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਾਇਰ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੁਗਜ਼ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਂ, ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਵਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਪਿਆ ਸੁਣੇ, ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਥੱਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤੱਕਨੇ ਪਏ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਹਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਮਰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੀ ਔਰਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 7:30 ਵਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫੌਰਨ ਮਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੰਟਾਇਰ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਈਫੋਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਵੇ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਓ ਫਿਰ, ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਟਾਪਿਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਆਈਫੋਨ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਸਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਵਲ ਮਿਸਦਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ,
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। वालेकुम सलाम कहने का रिवाज चला गया है। ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਜ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਂਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੜਿਆ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ अच्छा सर, मतलब कि इतना डांट के अगर बात करेंगे तो फिर हम तो चलते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ- ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੁਫਤ ਚ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਸਹੀ ਦਰੁਸਤ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ क्या यार, ये इतना छोटा सा प्रिंट लगाया हुआ है, मेरे से तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। नहीं वो खुद पढ़ के बता देंगे ना इसका क्या आप लुबेलबा पढ़ के बताएं, क्या इस सफे पर जानबूझकर ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਵਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 22 ਸਫਾ 446 सफा 446 एक मिनट यार ट्रू मुस्लिम साहब, आपने अहमदी कब होना है? अहमदी हाँ, ये मिर्जा साहब की तहरीरें जो हैं ये जब इनके मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर तो लगता है क्यामत तक ही टाइम आ जाना। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅਸਲੀ ਵਾਲੇ ਆਣਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ मुस्लिम ਨਕਲੀ मौजू वाल चलो मौजू वाल चलो मौजू वाल ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ यार ਨੇ मौजू पता नहीं क्या मौजू लगा के बैठ ਤੁਹਾਡੀ गए। ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ भाई आप असली बंदे हुए, आपकी चीजें असली हुई, जी आपकी सारी चीजें असली हुई तो कोई ना कोई तो आएगा ही ना असली आपकी तरफ, कभी तो अल्लाह आपकी सुनेगा। कहते हैं कि 70 साल बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है। रूढ़ी क्या रूढ़ी नहीं होती, उसकी भी 70 साल बाद सुनी जाती है, गैस निकल आती है उसमें से। रोड़ी जिसको कहते हैं रोड़ी नहीं, रूढ़ी। रूढ़ी का क्या मतलब है रूढ़ी जिधर सारे शहर का कूड़ा पड़ा होता है। अच्छा यार आपको रूढ़ी का नहीं पता? आप तो अच्छे खासे इंग्लिश मैन निकले यार। इलाके में बोलते हैं ना यार इलाके में पंजाबी के जो अल्फाज है अपने अपने होते हैं ना देसी शराब नहीं कभी निकलती हुई देखी आपने? नहीं मैंने नहीं देखी वो रूढ़ी में दब देते हैं तो फिर वो रूढ़ी से निकलती है, वो जो कुत्ते मार होती है। लेना देना हम क्यों देखें या हमारे सामने कौन सा बनती है या आपने यार देखी आप नहीं, मैंने सिर्फ मज्जों को दूध चोते हुए देखा है। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो देसी शराब नहीं बनते देखी जब आपने खुद नहीं देखी वैसे ही प्यार है ना आपसे, इसलिए। अच्छा पी है कभी आप ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਪੇੜਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਮੌਜੂ ਤੇ ਲਿਆਓ ਸੀ। अच्छा जी रूहानी खजाइन जिल्द 22 हकीकत उलवई सफा 44 की दसिया सी ने 446 446 ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਰਬੀ ਚ ਇਬਾਰਤ हाँ तो ਸੀ ते मैं की कत्ल वही ਹਾਂ 446 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ 52 ਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ अच्छा, जी क्या इबारत कह रही है? तो इबारत कह रही है 444 45 ਤੇ 46 ਦੀ उर्दू में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं। ਅਰਬੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਅਰਬੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਉਰਦੂ में पढ़ते हैं लफ्ज़ इब्न बगाया इसका तर्जमा मिर्जा जी ने नहीं किया हाँ जी, बगावत करने वालों के बच्चे, ये बगाया का मतलब बगावत करने वाले। अच्छा तो मिर्जा साहब मैं आपे एक जगह पढ़ रहा थे बल्कि 2-3 जगह थे
ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। तो वो नहीं, भगाया मतलब- क्या मानते हैं? बागी करने वाले। नहीं बागी नहीं, मिर्जा साहब कहते थे ਇਹਦਾ ਮਾਨੀ ਹੈ ਗਲਤ ਔਰतें ਖਰਾਬ ਔਰतें। नहीं आबिद साहब सवाल है वे कि इत्थे तर्जमा क्यों नहीं किया गया? ਉਹੀ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਬਨ ਬਗਾਇਆ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਬਨ ਬਗਾਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਬਨ ਬਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਆ ਖਰਾਬ ਔਰतें, ਕੰਚਨੀ ਔਰतें, ਕੰਜਰੀ ਔਰतें, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। बस जो फिर आप खुद फैसला करें। मानी तो अब सवाल है कि ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? यार ये तो अब मिर्जा साहब की रूह बुलानी पड़ेगी। नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਲ ਲੜਾਓ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? तो मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो वही तर्जुमा मान लिया और मैं आगे चल पड़ा हूँ। अब आपने ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਬਨ ਬਿਗਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी, ਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੇਰ ਗੈਨ ਅਲਫ ਹਮਜ਼ਾ इब्न बिगा। ये किन लोगों के मुतालिक कहा गया है? उनका क्या किरदार क्या लिखा गया है पहले शेरों में? ये तो शेर तो ज्यादा है आपके अब उस्ताद लुधियानी मुखातब है यहाँ पर, मुखातब ज़ाहिद लुधियानवी है। तो मुझे- सवाल तो ये है कि तर्जमा इब्न बुआ का आप जो मर्जी कर लेना, यहाँ क्यों नहीं किया गया है? ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੂੰ ਨੇ अपनी खबासत से मुझे बहुत दुख दिया, बस मैं सच्चा नहीं होगा अगर जिल्लत के साथ तेरी सवाल हमारा ये है। मौत ना हुई। ए इब्ने बगा, अगर इब्ने बगा दा तर्जमा नहीं ने एंड ते किते आखिरी जिस शेर दे एंड ते जेड़ा। देखिए इसका ना कुछ एक तो ये हो गया ना बगावत करने वाला, एक इसका जो हमारी जुबान में उर्दू जुबान में अगर आप तर्जुमा कहेंगे ना तो उसमें हो जाएगा गद्दार का बच्चा। नहीं तो इसमें फिर गद्दार का बच्चा या बगावत करने वाला इसमें तर्जमा ना और करने की क्या वजह हो जो सकती है? आप कह रहे हैं ना ट्रू इस्लाम साहब, जो आप कह रहे हैं ना कि अरबी में गलत किस्म की खवातीन का बच्चा, उसको अरबी में कहते हैं इब्ने गाबा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मिर्जा साहब खुद इसका बगा का मानी बता रहे हैं। वो याद कर लें लफज, वो गलत उसका होते हैं लफज और होता है बगावत इब्ने करने गाबा। वाला दो डिफरेंट है ना, इनमें फर्क है ना। हाँ तो बगावत करना तो कोई मजाके वाली बात नहीं है, इसका तर्जुमा तो बंदा कर सकता है, इसका मानी तो ठीक है कर सकता है, लेकिन जो जी, उसका मतलब नेगेटिव है ना, खराब गद्दार। औरत का बच्चा, गलत औरत का बच्चा, इसका मानी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ना कि क्या निकलता है। जी मिर्जा साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं बगा का? हाँ जी हाँ जी। जी तो ये आसान सा ही मतलब है, इसमें कौन सी ऐसी परेशानी वाली छोड़ा बात? क्यों नहीं फिर मिर्जा जी ने इसका मानी छोड़ क्यों दिया, तर्जुमा क्यों नहीं किया? उसकी जगह क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा, वो उसका तर्जुमा लिखा ही नहीं ना कुछ भी। उसका वो ये होएगा कि उस वक्त लोगों को पता होएगा इस लफ्ज का मतलब, आम होएगा ये लफ्ज। अच्छा जिसको इब्ने बगा का मतलब पता है तो उसको फिर बाकी भी इन लम तामुत बिल किसी या इब्ने बगा, तो बाकी लफ्जों का मतलब तो उसको पता ही होगा ना, फिर सारे मतलब जो बाकी अल्फाज हैं। क्या ख्याल है? बस एक का आपने छोड़ दिया कि आपको इसका मतलब पता नहीं बताता, तो फिर बाकियों का भी तो आपको पता ही होना था, फिर उसका मान तर्जमा करने की क्या जरूरत पड़ी थी? हाँ बस ठीक है, वो गैर जरूरी उन्होंने समझा होएगा। अच्छा आपको नहीं लगता, या मुझे तो ऐसा लगता है जो इब्ने बगा है मिर्जा साहब ने इसका खुद मानी किया हुआ है खला खला गलत। सर आप किस शहर में रहते हैं, किस मुल्क में और किस शहर में? मुझे लग रहा है कि मिर्जा साहब ने इसलिए छोड़ दिया है कि इस लफ्ज का मानी जो है ना अगर करें तो गाली बनता है, तो फिर ये मिर्जा साहब के हक में बात अच्छी नहीं होगी कि वो गाली वाला तर्जमा करे, तो फिर लोग कहेंगे देखे जी ये गाली इन्होंने लिखी है, सबको समझ आ जाए, तो मिर्जा साहब ने बेहतर यही समझा कि इसको छोड़ दिया जाए। ना बिल्कुल ये वजह हो सकती है आपके ख्याल में? बिल्कुल वन ऑफ दी वजह हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस पर वो नहीं हूं ना, इतना ज्यादा मेरी वो क्या कहते हैं गिरफ्त नहीं है इस पे। बहरहाल मैं आपसे पूछा था आप किस मुल्क में रहते हैं? मैं एक छोटे से विलेज में रह रहा हूँ। विलेज में तो रह रहे हैं, मुल्क भी तो होगा वो उस विलेज का कोई। मुल्क को क्या करना है, चीन हमारा, हिंदुस्तान हमारा, अरब हमारा,
सारा आप जहां जर्मनी हमारा। में? जी जी जर्मनी में? नहीं, बस यूरोप का ही एक मुल्क है। अच्छा 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 अच्छा। आपको वहाँ पे हमारे नमाज सेंटर या जमात से रब्ता करें, आपको अच्छी, आपका ना अच्छे लोगों से मिलना जुलना होएगा। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आपकी थोड़ी सी जो होएगी ना, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे साथ मैच करने लगेगी, फिर आपको ज्यादा बातें समझ आया ये करेंगी। मिर्जा साहब की जो किताबों में दो बातें हैं, जिस दिन ये मुझे समझ आ गई फिर सोच विचार करेंगे। मतलब मिर्जा साहब एक तरफ कह रहे हैं मैं नबी हूँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, हम भी मुद्दई नबूवत में लानत भेजता हूँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में नबी भेजा। हाँ, इस तरह की बहुत सी तहरीरें हैं जो मिर्जा साहब की ना तजाद पाया जाता है जिनमें। इनका बस क्या, यही है। पहले ये सॉर्ट आउट करते हैं ना, इनका हल ढूंढते हैं कोई। हल ढूंढना नहीं है, इसके लिए एक गलती का इजाला किताब है, उसको आपके मौजू लगेंगे आपको कि उसके साथ आपके मौजू हैं दो। जिस दिन आपने उसके अंदर से तीसरा मौजू ढूंढ लिया ना, उस दिन आप अहमदियों को पढ़ाया करेंगे वो किताब। नहीं, अहमदियत की तरफ जाने के लिए पहले जो कुछ मसाइल है उनका हल करना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि जो हदीसें हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि वो क्या मिर्जा साहब के ऊपर वो हदीसें उतरती हैं जो इमाम महदी के बारे में। छोड़ दें आप हदीसों को, हदीसों को मैंने भी छोड़ दिया, हदीसों को आप भी छोड़ हदीसों को दें। तो नहीं छोड़ सकते ना, हदीसों को छोड़ने का मतलब आप पूरे दीन इस्लाम को छोड़ रहे हैं, ये बात ना नहीं करें। नहीं, ये वो ऐसे नहीं है। हदीस का जो है ना, हदीस का मामला बड़ा टेढ़ा है। नहीं, अब हदीस का मामला बड़ा सीधा है। हदीस अच्छा, बड़ी- फिर आप ऐसी सीधी जलेबी जैसा मामले आपको ही मुबारक हो, मैं तो इनसे परे हट गया हूँ। ये जो हदीसें हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ਵਾਟਰ आएंगे। ਭਾਈ, ਆਬਦ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਹੋ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? मिर्जा साहब कहते ने कि जो छोड़ता है हदीस को तुम छोड़ दो उस हदीस को, ते तुसी हैदरा हदीस हो बकौल मिर्जा साहब दे। जी जारी रखो। अच्छा वाटर साहब ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਲੇ ਏਜ ਸੀ 52 ਸਾਲ, 52 ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵਫਾਤ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ, ਐਹਸਾਨ ਹੱਲ ਢੂੰढो, ईसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵਫਾਤ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बस ये कहा है कि जिस ईसा के ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਈਸਾ एक ही अलैहिस्सलाम बंदा। ਆਸਮਾਨ ਪਰ ਆਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗਾ। हाँ जी ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बिल्कुल। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੌਰ ਇਕੱਠਾ ਵੇ। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ सही है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। सर हम ईसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। सवाल पूछने वाले आप जैसे ही लोग हैं ना, तो आपने कोई सवाल पूछ लिया ऐसा जिसका जवाब हमारे पास ना हो? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਵਫਾਤ ਤੇ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਪੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਈਸਾ। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा ना कि ईसा, हाँ ਇਹ ਤੀसरे ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ऐसे ही है। अच्छा, तो बस अब आप अपना बैत फॉर्म तैयार करें और आप आए हमारी मस्जिद में आए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ आपकी बैत करवाते हैं। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ अगर मैं अहमदियत जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लिया। जबरदस्ती ना एक्सेप्ट करो, जो दस्तियां अपने ऊपर चढ़ाई हुई हैं वो दूर करो। कायल नहीं हो सकता, या तो कायल कर लियो मिर्जा साहब ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿदैन ਹੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਦੇ ਵਾਲਿਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ मिर्जा साहब ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? यार जो शियों के इमाम महदी हैं उनके तो ये नाम नहीं है।
नहीं, उनके जब आएंगे तो वो देखा जाएगा ना, उसके ऊपर भी तो फिर बात होगी ना। तो यही तो है। नहीं, मिर्जा परसों साहब तो आ गए ना, अब जो मौजूदा एक चीज सामने है नजर आ रही है उसके ऊपर पहले फोकस करते हैं। तो ये कोई मिर्जा बात साहब नहीं। के वालिद का क्या नाम था? तो फिर इस हदीस का क्या करें? मेरे लिए तो हदीस बहुत अजीज है, अहम है। मैं पहले हदीस को फोकियत देता हूँ, अहमियत देता हूँ, अवलियत देता हूँ, फिर बाकी बातें। कोई भी बात अगर हदीस से टकराती हो तो उस बात को छोड़ दो, चाहे आपके वालिद साहब की हो, आपके इमाम की हो, आपके जो क्या नाम है मुरब्बी की हो, शेख की हो, पीर की हो, किसी की भी हो। अच्छा, और अगर कुरान पाक की हो, तो पटक के दीवार के साथ अगर करो और कुरान पाक की हो, हदीस को पहचानो, हदीस की बात जो हदीस में जाए उसको मानो। और अगर कुरान पाक से टकराती हो हदीस, नहीं, वो बाद की बात है ना, उसको छोड़े ना, पहले हदीस की बात करें ना। कुरान से टकराती हो तो हदीस को फिर छोड़ दे, कुरान की बात मान लो। हाँ आप ऐसा करें कि कुरान पाक की बात मिर्जा साहब की जो ये बात है ये उनके ऊपर फिट नहीं आ रही ना, इसके हदीस के मिसदाक मिर्जा साहब नहीं है, फिर कैसे मानो मिर्जा साहब का इमाम मेहदी? ये बताएं। हाँ, जो आपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे इमाम मेहदी बनाए हुए हैं ना अपने इर्द गिर्द, सारों से पहले तो उन पर गौर करेंगे उनका क्या लेवल है। किसको फिर उसके इमाम बाद मेहदी बनाया होगा हमने? छोटे छोटे इमाम मेहदी अपने इर्द गिर्द से उतार देंगे तो असली वाला आपको साफ जैसे नजर इमाम आएगा। मेहदी की बताए ना, मिसाल दें ना, जैसे आपके तो इमाम मेहदी है मिर्जा साहब, हाँ जी, तो हमारे छोटे से इमाम मेहदी का नाम ले लो। चलो बस आपके सारों से पहले तो ख्वाब कि जनाब ऐसे नाम लो होना ना, चाहिए। छोटे इमाम मेहदी किसी एक का नाम ले लो जिसको जो कहते हो हमने बनाए हुए हैं। आपके सारे बंदे ही इमाम मेहदी हैं, आपको इमाम मेहदी की क्या इमाम जरूरत है? मेहदी होने का हमारे किसी बंदे ने दावा किया, किसी एक का नाम लो मेरे सामने, मैं उसको अभी इधर से ही देखे मोबाइल से निकल के ही थप्पड़ मारता हूँ। आप समझे नहीं है मेरी बात, आप समझे नहीं है मेरी बात। आप ऐसा करें कि आप सारी जो है ना इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और फिर एक दिन किसी समझदार आदमी के साथ ना पूरा दिन स्पेंड करें, फिर उसके बाद अपने सवाल जो है ना वो इस लिहाज से उससे जवाब मांगने शुरू करें कि आपको जवाब चाहिए। साहब ने ये इब्ने बगा का मानी तर्जमा क्यों नहीं किया? चले असल मौजू की तरफ आए, आप उधर चले गए थे। चलो छोड़े परे यार, आपको मिल जाएगा ना जब मानी तो आप मुझे भी बता देना। नहीं, इसका मतलब यही है कि कंजरी का बच्चा। पता नहीं होएगा फिर अब हम मिर्जा क्या कर साहब सकते हैं। मिर्जा साहब ने खुद बताया अपनी किताबों, मैंने खुद पढ़ा है। ठीक है, हाँ, ठीक है, चले बाकी आप बहस जारी रखें, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंशाल्लाह आप सारों को बड़ा इल्म मिलेगा आपके इससे ख्याल में टॉपिक। मिर्जा साहब ने इस लफ्ज का तर्जुमा क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं लिखा? मेरा क्या ख्याल है, मैं ऐसे अभी पूरा पढ़ूंगा तो फिर ऐप भी बताऊंगा। बता देना, ताकि हो सकता है मेरी बात में समझ आ जाए और मैं कहूँ उन्होंने कहा कि जेड़े पहला ही गालियां जिन्होंने पीएचडी की थी वो आप ही समझ जाएंगे। आप बता देना, अगर वो आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो मैं उससे इत्फाक करूंगा और कहूंगा वाकई ये बात तो ठीक किया मिर्जा साहब ने जो नहीं लिखा इसका तर्जुमा। मैंने आपको बता दिया, बगावत करने वालों का बच्चा। तो बगावत नहीं करने वालों का इसका मतलब मिर्जा साहब ने जो दो मानी बताया है, खराब औरत का बच्चा, गलत औरत का बच्चा, वो झूठ बोला मिर्जा साहब ने, फिर उसका क्या करोगे? पता नहीं यार कितने कितने आपने की किताब, खुद की किताब में लिखा हुआ है, उन्होंने खुद चले बताया। आपको फिर एक टिप देता हूँ, बात पता है क्या है? मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूँ, जैसे रसूल पाक हीरे की कान है, जिन्होंने इस्लाम को पकड़ लिया वो हीरे की कान में से हीरे ले गए, बाकी सब मिट्टी ले गए। हजरत मसीह मौद जो है ये सोने की कान है। अब सोने की कान में सिर्फ 1% सोना होता है और बाकी सब मिट्टी होती है। आप लोग मिट्टी ढूंढ रहे हैं और हमने सोना ढूंढ लिया, तो ये आप में और हमारे में फर्क है। तो आप क़यामत तक मिट्टी ढूंढेंगे, हम क़यामत तक सोना ढूंढेंगे। तो भाई आप अपने आप को ना बेहतर करें, आप बच्चे बन के ना ऐसे भोले से बन के, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको माफ नहीं करना ना हमें करना, इसलिए हम कोई स्टेप लेते हैं और कोई फैसला करते हैं। आप लोग तो बैठे हुए हैं ना कि रशीद का घर किसके घर के सामने है, बशीर के घर के सामने, बशीर का घर किसके सामने, रशीद के सामने, दोनों का है आमने सामने। ये है आपकी थ्योरी कि क़यामत से पहले हजरत ईसा आएंगे ते हजरत ईसा दे बाद हजरत मोहम्मद ही आएंगे ते नाल फिर दजाल आएगा ते सारे कदों आएंगे जदों क़यामत आएगी। क़यामत कदों आएंगी जब सारे आएंगे। तो आपकी तो ये आपने कहा कि इमाम मेहदी आएंगे, उनके साथ दज्जाल आएंगे, तो फिर दज्जाल कौन हुआ आपके नजदीक? इमाम मेहदी तो आपके आगे थे ना 135 साल पहले, तो दज्जाल कौन था फिर? दज्जाल जो है वो वक्त था
वो वक़्त जान की तो शख्सियत का नाम है ना, वक़्त का नाम तो नहीं है ना। वो वक़्त था और वो बहुत बड़ी चेंज का वक़्त था, और वो दजाल जो था वो बहुत बड़ा फितना था। तो वो फितना आज भी जारी है और इमाम मेहदी के मानने वाले आज भी उससे मुकाबला कर रहे हैं और उसका शिकार भी हो रहे हैं। कौन है वो दजाल? अभी मैं ज़रा जा रहा हूँ तो इस पर तफसील से बात होएगी, क्योंकि आपने तो आराम आराम से ही समझना, आपको समझाने में 5-7 साल लग जाने हैं। एक मैंने सवाल आपका हिसाब लगा लिया। एक सही बात भी नहीं किया आपने, सारी इधर उधर की ऐसे ही नटरखा दिया। सर फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਪਾ ਦਈਏ। नहीं, मेरे पास चलो कोई नवा मरबी चुको ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਆ। साहब लो जी सारे चल के जुम्मा पढ़े यूरोप वाले, आपके पास सामने रखा दया ना करे यूरोप वाले चल के जुम्मा पढ़े। ਬਹਰਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਜਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਦਜਾਲ ਨੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਕਵਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਜਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਦਜਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਜਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਜ਼ਾਲ जी मेरे प्यारे भाई, गल दरअसल है कि आज है जुम्मा, चलो सारे शाबाश जुम्मा पढ़ो, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। जज़ाकल्लाह। ਐ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਜਰਾ ਐਲਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। नहीं, नजर ही नहीं आ रहे, आंदे ही नहीं। ये वाटर साहब भी आंदे ने अपना वैसे ही जड़ा ना अपनी गल्लां मारन वास्ते। जवाब तो इन्होंने भी नहीं आंदा, ना ही देना चाह रहे। ਹਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਵਾਟਰ ਕੋਲੋਂ। नहीं वाटर ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? वैसे ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਟਰ। इब्ने बिगाल आपने सही, इब्ने बिगाल ਇਬਨੇ ਬਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਰਜਮਾ ਕੰਜਰੀ बिगा, ਕਰ। हाँ बिगा बिगा जड़ा इत्थे शायरी विच लिखे हैं, इन लम तमुद बिल हिज़ या इब्ने बिगा। हिज़ ये तक ते तर्जुमा किते हैं नहीं। अगर जिल्लत के साथ तेरी मौत ना हो या इब्ने बिगा, ਯਾ एक ਇਬਨੇ वजह ਬਗਾ ਦਾ ये हो ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ, नहीं, ਯਾ वजह ਇਬਨੇ ये- ਬਗਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜੁੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नहीं जेड़ा मतलब दो शेर लिखे ने आमने सामने, एक राइट साइड लिखे है, एक लेफ्ट साइड, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਬਨ ਬਿਗਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ। तूने अपनी फवासत से मुझे बहुत दुख दिया, बस मैं सच्चा नहीं होऊंगा अगर जिल्लत के साथ तेरी मौत ना हो। तो अगे एक लफ्ज लिखने की जगह भी नहीं है। ਕਦੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਥੱਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਹਾਸ਼ੀਆ ਦਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਦਰ ਹਾਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਸ਼ੀਆ ਪਾ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਪਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਮਸਲਾ नजीर भाई की हालत भी कितना ठीक ठाक आ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। बड़े अरसे से तेन सुनते हैं, बड़ा मजा आता नजीर भाई। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਨਵਾਬਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ तेन सुनते रहीदा, बड़ा मजा आता रहंदा भाईजान। अल्लाह खुश रखे ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ तेनू। ਵੀ ਉਧਰ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਲਕੇ ਨੁਲਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਨਲਕੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਉਮਰਕੋਟ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਐਲੇ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਕੈਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ,
ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਇਹ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਹਿਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ओरिजिनल स्कैन ने या ओरिजिनल किताब का सफ़ा हुआ है। इतने जगह है कि नहीं, अगर जिल्लत के साथ तेरी मौत ना हो, ए कंजरी के बच्चे के लिखा नहीं सी जा सकता। जगह है जान बुझ के मौत ते ना ते हो लम्मा लम्मा करके लिखे है। जगह तो रजो राजे थले उन्ने ही लफज उत्ते ने उन्ने ही थले ने। अरबी तो सौ बड़े बड़े लफज हो जाते हैं। लाइन नूं उत्ते वाली नूं थले वाली नूं एडजस्ट करना ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਾਫ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਜਿੱਲਤ ਕੇ ਸਾਥ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਿਤੋਂ ਕੱਢੇ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੱਢੇ? ਨਹੀਂ, ਅਲ ਖਰਾਬ ਬਹੁਤ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੈਨ पे है। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਖੋਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਆਰਕਾਈਵ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਲ। ਆਰਕਾਈਵ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਵਾਹ ਪੂਰਾ ਸਫਾ, ਵਾਹ ਮਨ ਪੂਰਾ ਸਫਾ ਉੱਤੋਂ करके ऊपर करके और सफा दूर कर, सफा पेज स्क्रीन दूर कर। आर्काइव तो लिखिया नजर नहीं आ रहा उत्ते। अच्छा देखो आर्काइव लिखे क्लाउड। हाँ ठीक है नहीं, मैं क्या लाहौरिया की वैबसाइट तो खोलिया उन्होंने, लाहौरिया की वैबसाइट तो ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ AAIIL.org, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਲਵਈ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਹਿਰੀਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉਰਦੂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੋਟੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ अस्सलाम वालेकुम आमन नज़ीर भाई, आहिर बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। आमन नज़ीर भाई, वो बता दें मेरे से क्या जुर्म हुआ है, कौन सा मामला हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया है। जो आपने मेरी ओरिजिनल आईडी से मुझे बैन वगैरह किया है, ब्लॉक किया है, और नीचे भी पूछ रहा हूँ, आप बता नहीं रहे हैं। काइंडली बता दें ताकि मामला को मुझे पता चल जाए क्या हुआ। मेरी आवाज़ आ रही है किसी को वहाँ पे? अबू बकर मीर भाई, अबू बकर मीर भाई, आपको आवाज़ आ रही है? मलिक इमरान भाई आ रही हो, पीछे कार लगे वहाँ पे। अच्छा जी जी, ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। जी जी, ये तो वही लिखा है ना जो उस दिन हमारी ब्रॉड पे बैठ के बात हुई थी अमरजीर भाई। एक मिनट पढ़ो तो सही ना सर, पढ़ो तो सही, लिखिया की है? वही है अमरजीर भाई, उस दिन वाला पोस्टर है ना। सुरख सही नाल की लिखे है? सुरख, लेकिन अगर आपको किसी भी मुसलमान के खिलाफ कुछ कहना है तो आपको बिला तफरीक यहाँ से दूर रहना होगा। जी 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 जी, तो किसके खिलाफ मैंने कहा है अमरजीर भाई? जो कोई तुसी हुण करके आए हो, तो जो कोई तुसी कल करते रहे उत्थे, वो जड़ा जिहदी शक्ल भी नहीं किसे वेखी है, वो यूके वाला बाबर, वो जो कोई नहीं यार, मैनू किसे मैनू अहीर भाई, मैनू किसे ग्रुप नाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनू इस कुत्ते खानी तो प्रॉब्लम है जिहड़ी सुबह दी कुत्ते खानी मुसलमान एक दूजे नाल करन लगे। तो मैंने तो नहीं किया अमरजीर भाई। मुसलमान सुनते लो ना, तुसी ओदा हिस्सा हो, तुसी ओदा हिस्सा कैसे कैसे? मैं क्योंकि तुसी उस पैनल दे उत्ते मौजूद हो, तुसी उस पैनल दे उत्ते मौजूद हो, तो कुत्ते मुसलमान एक दूजे नाल करन लगे ने। मैं खुद देख के आया तुहानू। मेरी गल सुनो, अली भी तुहाडे नाल करके आया। जब तक अली नक नाल लीका नहीं कटेगा, मैं अली नू नहीं लेना ब्राड। रोवे जो मेरे साथ अभी ब्रॉड पे बात करके आया अली? नहीं, ये पहले ही एक सवेरे चढ़िया सी ओदी अस्कानी दी ब्राड दे उत्ते जाके। अस्कानी की ब्रॉड पे तो मैं गया ही नहीं अपना अमरजीर भाई। मैं अली दी गल कर रहा कि अली जिहड़ा है वो सुबह पीर अस्कानी दी ब्राड ते चढ़िया सी, ते मैं इन्हां नू पहले दिन एहो ही
ਨੇਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆਮ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ? तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मैंने कहाँ पे की है वहाँ, किसके पास की है? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ कैसे हूँ आमिर नज़ीर भाई, कैसे हूँ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ यार मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, लास्ट टाइम जब आपके साथ मिलके ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬਰਾਡ ਤੇ ਐਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ आपस में? मुझे तो नहीं याद पड़ता। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬਰਾਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ? मैं काफी ब्राडों पे था, लेकिन मैंने आपस में मुसलमान लड़ रहे हो मैं तो नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता। ਪੀਰ ਅਫਗਾਨੀ ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਗਏ ਸੁਬਾ? मैं नहीं पीर अस्कानी की ब्राड पे गया। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਦੀ ਉਹ ਬਰਾਡ ਲੱਗੀ ਸੀ? किसने आपको पहुंचाई है ये बातें आमिर नज़ीर भाई? मैं तो नहीं गया पीर अस्कानी की ब्राड में। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ पीर अस्कानी मेरे से बोल नहीं रहा। लास्ट टाइम पीर अस्कानी जब मेरी ब्राड पे आया ना, उसने आके ट्रक ड्राइवर बोलना शुरू किया है, और वो क्या उसने बोलना शुरू किया लफ्ज, मैंने उसको नीचे उतारा है, वो तो मुझे लेता ही नहीं, बोलता ही नहीं मेरे साथ। एक ब्राड पे कॉमन एक जगह पे मिला है, सलाम तक नहीं लिया उस बंदे ने मेरे साथ, आपकी वजह से कि तू उसकी साइड लेता है, भले मानस वो भले मानस का रहता है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। मैं क्यों आपको छोड़ दूं आमिर नज़ीर भाई, आपको क्यों छोड़ दूं मैं? वजह आप मेरे भाई नहीं छोड़ना, अगर मैनू नहीं छोड़ना ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕੱਢੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ मैं कह रहा हूं, मुझे बताएं तो सही कहां पे, किधर मैं किस लड़ाई में बैठा हूं? ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ बाबर की ब्रॉड पे। हाँ ये करे ना, मैंने नहीं पता फैसल डार जब ऊपर चढ़ा है मैं नीचे उतर गया हूं, मैं नीचे उतर, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ आपको ਕਿ किसी ने ਬਰਾੜ बताया? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਕਦਾ ਰਿਹਾ। आमिर नज़ीर भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह फैज डार जब वहां पे आया है, बातें जब आपकी तरफ शुरू हुई हैं, मैं पैनल से नीचे उतरा हूं, इन्हें कहीं पूरी रिकॉर्डिंग तो दिखाए ना आपको, ये जो भी दिखा रहा है बंदा पूरी रिकॉर्डिंग दिखाए। मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन अन्ना मैं पता है, फिर मुझे मैं तो अपनी आंखों नाल देखा है। मैं आपको कलमा पढ़ के कह रहा हूं, मैं अस्कानी के पास बैठ के मैंने किसी किस्म की कोई शरारतबाजी नहीं की है। किसने आपको अस्कानी की ब्रॉड पे मैं बैठा हूं? आमिर भाई मुझे 2 मिनट मौका देंगे प्लीज। मैं सिर्फ तो सिद्धू साहब, ना मेरी आपसे बात हो रही है ना मैं आपसे करूं। भाईजान मैं आपसे बात कर नहीं रहा, मैं आमिर भाई से बात। मेरी मुकम्मल होने दें, उसके बाद आप जो मर्जी कीजिएगा। मेरी उनसे आमिर भाई ये जो सेम, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आमिर नज़ीर भाई, किया जा रहा है ना उसका जवाब मैं भी देता हूँ, चाहे आप कर लें यार आप प्लीज अब मेरी बात मुकम्मल होने दें। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने सामने कुछ लिख के लगाया है, मैं नहीं चाहता मैं उसको ज्यादा देर घसीटूं की किसी लड़ाई का मैं हिस्सा था, लाइव एंडेड। मुसलमानों की किसी लड़ाई का मैं हिस्सा था, हेंस लाइव एंडेड मेरे दोस्तों। तो साबित ये हुआ कि कोई बंदा आमिर नज़ीर साहब को जाके चुगलखोरियां कर रहा है और वो पूरी नहीं कर रहा। कौन है? अली अहमद भाई, आप तो नाक की लकीरें निकाल के आए ना, आप अब मेरे पास भी ना आए प्लीज। पहले जाए आप, आमिर नज़ीर भाई कह रहे हैं नाक की लकीरें निकाल के आए, जाए शाबाश। अब 15 बंदे काल डाल पे बैठे हैं। जब मैं मिन्नतें कर रहा था, मुझे कोई भाई मुंह नहीं लगा रहा था। जब आमिर नज़ीर भाई ने काल पे ले लिया है, अब देखो ये सारे आ गए हैं। यार बात तो वो खलीफा की बात फिर सही साबित हो रही है। जब तक आपको वहां से इशारा नहीं मिलता, मैं आपके लिए काफिर हो जाता हूं। जैसे ही आपको कोई इशारा मिला, मैं आपके लिए मोमिन हो जाता हूं। ये क्या है? व्हाट द हेल इज दिस? और कौन, किसने जाके आमिर नज़ीर को ये कहा है कि मैं किसी मुसलमानों की लड़ाई में बैठा हूं? कहां पे बैठा हूं? वो बंदा लेके आए मेरे सामने। और आमिर नज़ीर साहब, मैं अल्लामा किबला में हैरान जाऊं आपके ऊपर, बिला तहकीक बगैर देखे आप उठा के अपने मुसलमान भाइयों को बयान कर रहे हैं। जेडाई भाई, अगर इसके लिए जरूरी नहीं है तो आप चले जाएं मेरे भाई, आपको नहीं एहसास है ना, आप चले जाएं, छोड़े ना, अगली ब्रॉड पे जाएं प्लीज। यार ये चुगलियां करके लोग मुसलमानों को लड़ा रहे हैं आपस में, और आप लोग जो कह रहे हैं पता नहीं क्या है, आपको हर चीज नॉन सीरियस लगती है आप लोगों को। खास करके एक बंदा जो लड़ता है इस चीज के लिए कि ना हो लड़ाई फसाद मुसलमानों में। मैं उतर जाता हूं अक्सर ब्रॉडों से, अक्सर जगह से मैं उतर जाता हूं जब मुसलमानों के बारे में बात होती है। आमिर नज़ीर साहब फरमा रहे हैं कि जब तक आप नाक से लकीरें नहीं निकालेंगे हम आपको नहीं लेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए नाक से लकीरें निकालने को भी तैयार
हूं यार, कहां मिलेगा आपको ऐसा बंदा जितना बनते चले जा रहे हैं यार, आप लोग क्या कर रहे हैं? खुदा की कसम, मैंने लास्ट टाइम भी कहा है कि मैं आप लोगों से हार जाता हूं। मरज़ई होता कोई, मैं चीर के उसके अंदर से गुजर गया होता। अभी तक कोई मरज़ई होता, मैं चीर के ना उसके 2 टोटे करके उसके अंदर से 5-6 बार गुजर गया होता। लेकिन आप लोगों से मैं हार जाता हूं क्योंकि आप मेरे भाई हो, आप मुसलमान। कौन कर रहा है? मलिक इमरान अब कॉल डाल रहा है, देखो। लोगों में से कोई नहीं आया जब अमरजीर भाई ने सिद्धू जट वहां पे पहुंचा है। सिद्धू जट मुझे 3 महीने से घसीटने की कोशिश कर रहा है अपनी लड़ाइयों में, मैं नहीं आ रहा हूं। ऑनेस्टली आई एम डिसअपॉइंटेड बाय ऑल ऑफ यू गाइज। ऑनेस्टली मेरा दिल तोड़ा है आप लोगों ने आज, और मैं नहीं कुछ करूंगा आपके खिलाफ। खुदा की कसम, मैं उसी पाक रसूल के सामने आप लोगों को पकड़ूंगा जिसकी इज्जत के लिए आप भी सारा दिन यहां पे खपते हैं, मैं भी खपता हूं। कि आप एक ऐसे बंदे को जाके चुगलियां करते हो, बैन करते हो, इंसल्ट करते हो, तजलील करते हो उस बंदे की जो अस्कानी की बात की आमर नज़ीर भाई ने। सुन ले, अस्कानी एक डायलॉग बोलता है भले मानस, वो आमर नज़ीर भाई को लगा के बात करता है। मेरी ब्रॉड पे अस्कानी आया, उसने सिर्फ इतना कहा, वो एक भले मानस इंसान, मैंने अस्कानी को नीचे उतार दिया। मैंने कहा अस्कानी साहब सॉरी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी मुसलमान के खिलाफ यहां पे आप बातें करें। यहां पे फैज डार साहब आए, उन्होंने आके ट्रक ड्राइवर कहा, मैंने नीचे उतार दिए। उतारा कि नहीं उतारा? फैज डार से पूछो जाके, यार वो बंदा कम से कम सच्ची गवाही देगा मेरी। इन लोगों ने कहा जी फला 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 ये होगा ये होगा, मैंने कहा ठीक है। 4 चीजें उस दिन यहां पे रखी गई, मैंने 3 से एग्री किया, चौथी पे मैंने मुंह पे बताया कि भाई देखो जो ये बात है ना कि बैठना नहीं है, ये इत्तेहाद के खिलाफ है। ये बात मैं गाली दूंगा नहीं, दिलवाऊंगा नहीं, जिस टाइम दी जा रही होगी उस टाइम मैं बैठूंगा नहीं। उसके अलावा मुझे जहां मौका मिलेगा मैं मिर्जे को ठोकूंगा। अगर कादियानियों, मिर्जइयों, हराम खोरों, गुस्ताखों की ब्रॉड पे जाके खत्म नबूवत का काम हो सकता है, बाबर की ब्रॉड पे भी हो सकता है। बाबर काफिर का बच्चा नहीं है। अफजल वड़ैच की ब्रॉड पे भी हो सकता है, अफजल वड़ैच किसी काफिर का बच्चा नहीं है। खलीफा वक्त किसी काफिर का बच्चा नहीं है, मुसलमान है वो सारे। आपने गालीबाज कहना है खुल के कहो, उन्होंने आपको कुछ दूसरा कहना है खुल के कहें। वो मैंने तो दोनों पार्टियों को कहा था। वो चुगलखोर मेरे सामने आए ना जो ये बंदा जाके ये बात कर रहा है। और आमर जी साहब मैं हैरान हूं, आपने सबूत नहीं मांगा किसी से कुछ पूछा नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं, आपने उठा के मुझे बैन कर दिए। और अभी आप कह रहे हैं कि आप वहां पे तमाशा, मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा हूं बुजुर्गों। एक लफ्ज नहीं मैंने आपके खिलाफ, आपकी शान के खिलाफ कुछ बोला, कोई गुस्ताखी नहीं की मैंने। मैं अभी तक आपको अल्लामा, बुजुर्ग, सफेद बालों वाले, बारिश, हमसे बड़े कह रहा हूं, लेकिन साथ ही मैं कह रहा हूं आपने बड़े होते हुए बच्चों वाला काम आज किया। अल्लामा साहब ऐसा सब छोटों सा बच्चों वाला तो रूल को मैं भी बना सकता था। क्यों मैं तंग आ गया हूं आमर नज़ीर साहब, आपकी अफजल वड़ैच से लड़ाई देख देख के मैं आपको ब्लॉक करता हूं। क्या मैंने किया? नहीं किया ना। मैं छोटा हूं, मैं आपके कदमों में बैठने लायक हूं, लेकिन मुझे अल्लाह ने इतना बड़ा दिल दिया है कि यार अपनी जात को ना बनाया करें इस तरह, ये ना तमाशे ना किया करें ये चीजों के, और अपने रूल दूसरों पे नहीं थोपने चाहिए। खुद तो आप मुझे कह रहे थे आमर नज़ीर भाई, उस दिन खुद ही तो आप कह रहे थे कि कोई अहीर भाई को प्रेशराइज ना करे, उन्हें अपना टाइम लेने दे, वो खुद चीजों को समझेंगे। अगर ऐसे आप लोगों ने करना है तो मुझे तो यही समझ नजर आ रहा है कि इस वक्त बाबर चुप करके बैठा है, खलीफा वक्त चुप करके बैठा है, अफजल वड़ैच चुप करके बैठा है, वो तो म्यूट बैठे हैं। और मुझे तो उन्होंने बैन नहीं किया अपनी ब्रॉडों से, मैं उनके खिलाफ बोलता रहूं। बोला हूं कि नहीं बोला उस दिन बाबर के खिलाफ? और बताओ यार, तुम लोग अल्लाह रसूल के लिए सच्ची गवाही भी नहीं दे सकते हो। ऐसे लोग, अजीब लोगों से पाला पड़ गया मेरा। क्या मैं उस दिन यहां बाबर के खिलाफ बोला हूं कि नहीं बोला? फैज डार के खिलाफ बोला हूं कि नहीं बोला? इन्होंने तो मुझे बैन नहीं किया। आप बैन कर रहे हो, इसका मतलब है एक बंदे को आप खुद कॉर्नर कर रहे हो, हम तुम्हें खुद से दूर धकेल रहे हैं, जाओ तुम उस तरफ जाओ और वो करो। तो ये सपना जिस किसी का भी था ना, किसी चुगलखोर का था, किसी मुनाफिक का था, या किसी कादियानी का था, ये मैं होने नहीं दूंगा। और ये शैडो बैन तो मैं होने नहीं दूंगा, ना मैं अपनी ब्रॉडों पे करूंगा, ना मैं होने दूंगा। मैं अपनी पे तो मैं करूंगा धड़ल्ले से, आपसे मैं कैसे करवाऊंगा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ के करवाऊंगा। अमरजीत साहब ये जुल्म ना करें आप प्लीज, ये उम्मत पहले ही बड़ी बटी हुई है, यूं ना करें आप। सिर्फ किसी को बैठने पे एक जगह पे उसकी डीपी जो है वो वहां पे लगी हुई है, आप उसको बैन कर दें, जुल्म बलाए जुल्म है ये जुल्म है। रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कलम कि अपने कलमा गो भाइयों को, खत्मे नबूवत के मुजाहिदों को इसलिए हम बैन कर रहे थे, एक जगह पे सिर्फ उनकी डीपी ऊपर खड़ी हुई थी।
یہ بھی تو ہو سکتا ہے اوپر ڈی پی کھڑی ہو, وہ کہیں موبائل سے آگے پیچھے ہو, لیکن واللہ پتہ ہے میں اتنا بھی خیال رکھتا ہوں, میں میوٹ بھی بیٹھا ہوں تو میں اکثر کان رکھتا ہوں کہ جہاں بات ہونے لگتی ہے میں نکل جاتا ہوں وہاں سے, میں نکل جاتا ہوں. لیکن کیا آپ لوگوں نے ٹکا کے ظلم کیا ہے. اب میں نے سوال کا جواب مانگا, براڈ بند کر دی گئی, اور مجھے پتا ہے کل سے آپ نہیں لیں گے, میں آتا رہوں گا, میں روز ٹرائی کروں گا, آپ میری ایک آئی ڈی بین کریں گے, میں 10 آئی ڈی. بلال بھائی آگے ہیں. عزیز بھائی معذرت, میں نے بولنا نہیں تھا, ان کو سن لیں. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ بندہ اور طرح ہے, 2 دفعہ بات کیا, وہ بندہ بلال بھائی جو ہیں ان کو لیں کال کے اوپر. بلال بھائی مزیدار بات یہ ہے کہ بلال بھائی نے کہا ان کے پیچھے شور ہے وہ اس لیے اوپر نہیں آئے. اس کے بعد ان کی آواز ادھر آئی ہے. مجھے ایک چیز بتائیں بابر صاحب, بس کر دے ڈرامے بازیاں, بس کر دے جھوٹ بولنے, بس کر دے جب تک عامر نذیر صاحب نے مجھے کال پہ نہیں لیا, گلا کر دینے بہ کہتے سچ بولو, وہ نہیں آیا اوپر, اس نے نہیں آنا تھا تب تک. عامر نذیر صاحب نے مجھے علی بھی لکیریں نکلوائے گا, ملک بھی لکیریں نکلوائے گا, بلال بھی لکیریں نکلوائے گا, پھر جائے گا وہاں پہ, ورنہ نہیں جائے گا. یہ ہے الفاظ. چلو دیکھتے ہیں آج کس کی لکیریں نکلتی ہیں. یار ایک منٹ ہاں جی یہی مسئلہ ہے نا, پھر آپ نے تو وہی کام کر دیا جس کا بلیم آپ عامر نذیر کو دے رہے ہیں. وہ ابو بکر تھے یار, ابو بکر میر تھا وہ, ان کی آواز نہیں تھی یار. میں اگر نام لے, میں نے کہا میں 10 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں, میں ٹرین میں تھا, شور تھا. نہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, آپ رکیں بلال. اور وہ مرشد بھائی بھی جو ہمارے ٹک ٹاک پہ, میں ان کو ملک عمران کو میں نے اٹھا لیا, اگر وہ آپ کی ملک عمران کو بھی اٹھا لیا, بلال انیس کو بھی اٹھا لیا, عدیل جمیل کو. اگر وہ آپ کی آواز نہیں تھی بلال بھائی, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں, لیکن وہ میں نہیں تھا, ابو بکر میر صاحب تھے, وہ تو ان سے بات کر رہے تھے. بات یہ ہے, لیکن اب آپ کو بھی خوشخبری سنا دیں, آپ بھی بہن ہیں ماشاءاللہ. اور نہیں, مجھے ان چیزوں سے فلک آپ ناک سے لکیریں نکالیں گے بلال بھائی, آپ کو پتا ہے واپس جانے کے لیے. میں اس لیے نہیں اٹھا رہا تھا. میں بات سن لیں, میں پہلے آپ سے 10 منٹ کا ٹائم لیا تھا, وہ قدرتی طور پہ آپ ادھر گئے, میں ادھر بیٹھا ہوا, اس لیے نہیں اٹھا رہا تھا. میں نے یہاں پہ وہ آواز, عامر نذیر بھائی نے علل اعلان کہا ہے کہ ملک عمران. نہیں میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو علامہ صاحب نے کال پہ لیا تو اب میں جاؤں. میں نے آپ کو پہلے 10 منٹ کا, نہیں میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو میں دوسروں سے کہہ رہا ہوں جن کی میں منتیں کر رہا تھا, آج ان کو کہہ رہا ہوں میں. آپ تو ادھر سے تب سے میرے پاس بیٹھے ہیں. مجھے کوئی نہیں, آپ میرے بھائی ہیں, پیارے بھائی ہیں, اور میری نظر میں علامہ صاحب کو اس میں بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ملک عمران صاحب کال سے اترنے سے کیا معافی مل جائے گی اب آپ کو؟ اب آئے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, علامہ صاحب نے رول یہ بتایا کوئی بیٹھا بھی ہوا وہاں پہ. نہیں میری بات سنیں, میری بات سنیں, وہ ویڈیو مجھے بھیج دیا آپ نے, میری بات میں نے سنیں, لکھا نہیں ہے ناک سے لکیریں. ان کا ملک عمران دیکھو نکل گیا آرام سے. طاہر بھائی بات سنیں, جی بلال جی. ان کا جو پرسپیکٹیو تھا نا وہ یہ تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں مسلمانوں کا آپس میں بڑا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا جو اس کام میں پڑتا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے, کیونکہ اسے ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچتا ہے. اور میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, اور کافی حد تک اس چیز میں بہتری آ گئی ہے کہ اب جو مسلمان جو جیسے وہ سدھو جٹ صاحب وہاں پہ جا کے کچھ شروع کرنے لگے تھے, ٹھیک ہے, اور میں وہاں پہ جب آپ وہاں پہ تھا نا, جب سدھو جٹ گیا, میں نے تب بھی وہاں پہ بھی کال ڈالی ہے کہ مجھے اٹھائیں تاکہ میں کہوں اس کو روکو, یہ کام نہ. وہ کوئی ریکارڈنگ چلانے لگا تھا, کیا مسئلہ تھا مجھے نہیں پتا. اس کام سے مجھے سخت نفرت ہے خود ذاتی طور پہ, اور میں خود یہ بابر بھائی کی براڈ پہ ایک دن گیا تھا, بڑی میں نے منتیں ترلے وہاں پہ کی ہے کہ یار یہ کام آپس میں نہ کریں. میں نے بھی وہاں پہ کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کے خلاف بات کرنے گیا, لیکن اصل بات یہ ہے اہیر بھائی, یہاں پہ آپ کسی کے پاس جائیں بھی نا یہ کہنے کہ یہ نہ کرو, اس سے بھی لوگوں کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ لوگ اسی وجہ سے میرے پاس آ رہے ہیں, اور یہ کام بڑھتا چلا جاتا ہے اور ختم نبوت کو اس کام سے نقصان پہنچتا ہے. یہ ان کا نظریہ ہے اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے غلط فہمی ہوئی ہے, یہ میں سمجھ چکا ہوں. میری ہی براڈ پہ ہوا تھا, آپ کو اتنا بھی پتا ہے کہ یہ یہاں پہ ہی ہوا تھا. کیا یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا نظریہ, یہ میری ہی براڈ پہ بیٹھ کے میرے ساتھ عامر نذیر صاحب, ہاں میں موجود تھا اس دن. جی بالکل ہے نا. آپ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں, سدھو جٹ پوری ٹک ٹاک پہ مشہور ہے کہ نہیں ہے ریکارڈنگز ادھر سے ادھر لے کے پھرنے میں؟ میرا اس سے تعارف نہیں ہے, اوکے ٹھیک ہے, میں صرف ایک بات کرنے کی. اچھا میری ایک عرض تو سنیں, آپ بولے میں بیچ میں نہیں بولا, آپ بولے میں نہیں بولا. نہیں مجھے ایک چھوٹی سی بات کر دیں جناب. سوال یہ ہے, آپ بھی میرے بھائی ہیں, اہیر صاحب بات سنیں, جی علامہ صاحب میرے بھائی ہیں, میں نے آپ کے پاس بھی آنا ہے, علامہ صاحب کے پاس بھی جانا ہے, جس کی دل ہے بلاک کر دے واپس کی بات. آپ دفعہ ہو جائے, آپ بلاک سن لینا, سن لیں, نہیں کوئی بات نہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں پھر وہ ہو جائیں گے راضی, کوئی مسئلہ نہیں. بات یہ ہے
आप भी ब्लॉक करेंगे ना, तो जब तक आप दोनों में से कोई भी बंदा मुसलमानों को गालियां नहीं ना देगा, उसके साथ मेरी दुआ सलाम है। अच्छा ठीक है। अब बिलाल साहब आप तो और सुनिए आपने मेरा ना सवाल। ऐसा को काम किया लामा आप साहब, सवाल इसमें सुनिए। बड़ी गलतफहमी हुई आपको है। पता है मैंने आज तक नहीं किया, नहीं किया, जो मुझे मर्जी पता होता है। रहे, मैं नहीं करता। मुझे उधर से बड़ा कुछ बोला गया, मैंने नहीं बोला। अली अहमद साहब प्लीज बात तो कर लेने दें। अब करें बात मेरा। आपके सामने उन्होंने क्या बोला मुझे कि आप भी गए हो, आप तो मैं बराबर। उन्होंने कहा है कि अली अहमद साहब आप नाक से लकीर, उन्होंने कहा अली अहमद अभी तुम्हारे साथ बैठा बात कर रहा था ना, वो इधर आएगा तो नाक से लकीरें निकाल के दिखाएगा, फिर आएगा। आप फिर आ गए मेरे पास। यार फिर भाई है ना, ये भाई क्या कहते हैं, जब उनका दिल अच्छा करेगा तो फिर सुने ना, फिर भाई की बात भी तो लड़ाई सुने, करें उनसे। भाई का सवाल भी तो सुन लें, फिर सुन लें मेरा सवाल सुन लें। सवाल ये है कि अफजल वड़ैच के ऊपर सहूलतकारी का इल्जाम है कि नहीं है? ये ऊपर बैठे हैं। अफजल वड़ैच साहब कह रहे हैं मैं तक अलामा साहब की ब्रॉड पे बैन नहीं हूं, ट्राई किया मैंने जाके, आईडी बैन नहीं है। यार मेरा वो कुफर तो बताओ कि मुझे बैन ही कर दिया उठा के। नीचे मैंने जाके अलामा साहब को सलाम किया और मैंने कहा कॉल पे ले लें, बस इतनी बात। आहिर भाई बात सुने, गलत फहमी हो गई है उनको, ये मैं मानता हूँ, ये उनसे गलत फहमी, इसमें आपका कोई बिलाल भाई हम दुनिया को क्या समझाएंगे कि कोई फासिक आपके पास खबर लेके आए तो उसकी पहले तस्दीक करनी है। अगर अलामा साहब बगैर यार फासिकों से लोग धोखा भी तो खा जाते हैं कि नहीं खा जाते, क्या ख्याल है? तो फिर पकड़े ना। मैं अच्छा अब कोई शान में फर्क तो आ नहीं जाएगा। मेरी बात मैंने कैमरा ऑन किया था तो आप बैठे हुए थे। अहीर भाई मैंने फिर बिजी हो जाना, मेहरबानी। हाँ जी बताओ। उन्होंने कैमरा ऑन कराया था तो उस टाइम आप बैठे हुए थे, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी होगा, कहेंगे तो मैं लगा दूंगा तो शायद। वो बंदे आप निकले माशाल्लाह। नहीं मैं नहीं ठहर जाए, मेरी पूरी बात सुना कर, ये आधी बात नहीं पकड़ते, पूरी बात सुना करें। इसी तरह बराड़ चल रही थी तो किसी भाई ने वो बराड़ लगाई थी जहाँ ये मसला चल रहा था ना, किसी भाई ने वो वहां पे कैमरा, मतलब जिस तरह आप दिखा रहे हैं इस टाइम अमन नजीर की बराड़ पे क्या, वो उस टाइम किसी ने दिखाया था कि उधर क्या चल रहा था, उधर आप बैठे हुए थे। मैं ये कह रहा हूँ बात, अब बात की समझ आ गई है। अब बता दें, अब मेरा जवाब दे के जाइएगा क्योंकि इसका जवाब नहीं, मैं इधर ही हूँ, मैं जाता नहीं हूँ, मैं इधर ही बैठा हूँ, भागूंगा नहीं, इधर मैं म्यूट लगा के बैठता हूँ। नहीं प्यारे भाई बात सुने, यही सवाल मैंने अलामा अमन नजीर साहब से पूछा, उन्होंने जवाब दिया नहीं, ब्रॉड बंद कर दी। मैंने कहा अगर मैं वहां पे बैठा हुआ था, अगली चीज किसी ने दिखाई है कि जब फैजदार ने आके बात शुरू की है मैं उतर गया हूं वहां से? यार पूरी बातें कौन बताएगा आप में से? ये तो मैंने भी यहाँ पे देखा कि जब ये फैजदार वाली बराड़ की बात नहीं, ये मैं दूसरी बराड़ की बात कर रहा हूँ। भाई मैं भी तो क्लियर कर दूं ना, ये फैज नहीं वो यहाँ पर भी फैज साहब जब कुछ बोलने लगे हैं तो इन्होंने उसको फैज भाई को नीचे उतार दिया है, ठीक है सर? नीचे मैंने उतारा है ना, और मेरी दूसरी बात तारीफ है, नीचे उन्होंने कमेंट में वही लफ्ज लिखा। मैंने बाबर साहब ने मुझे तवज्जो दिलाई कि एक दफा ना म्यूट करके अनम्यूट करो दोबारा ताकि कमेंट डिलीट हो जाए, मैंने कर दिया। मैं कहता हूँ मुझे बड़ी खुशी है सर कि आपके अंदर इतना हौसला है कि आपने तब से लामा साहब ही कहा है और कोई बदतमीजी नहीं की, ये आपको सलाम है। अलामा साहब भी भाई हैं, मैं तो मैं करूंगा, मैं आगे गलतफहमी उनको होगी है। अफसोस इस चीज का हुआ है कि यार पकड़ के वही मुजाहिद अपना मार दोगे जो सुलह सफाई की कोशिश कर रहा है, तो पीछे नहीं कोई बात नहीं। देखे इख्तलाफ हो जाता है आहिर भाई, मुसलमानों में भी हो जाता है, ठीक है? आपकी नियत पे कोई शक नहीं है, किसी भी मुसलमान की नियत पे कोई शक नहीं है। बड़ी दफा हुआ है, मैंने आज तक ना इतना तक नहीं, मैं इतनी मेरी रिस्पेक्ट है, थी और है और रहेगी। आप बैठे हैं ना, आपसे ऊपर खलीफा वक्त है और उससे ऊपर अफजल वड़ैच भाई है ना, अगर अलामा आमर नजीर साहब यूं बैठे होते हैं ना ऊपर वाली सीट पे, मैं उन्हें नीचे तक नहीं करता हूं। यूट्यूब मेरी एक आदत रहती है, ये हमेशा से नोट कीजिएगा। आप यूट्यूब पे जाए, जैतून एफएम पे जो इकट्ठे प्रोग्राम किए ना हमने 4-5, नोट कीजिएगा, मैं यूं करके ना शेख साहब के बराबर ऊपर वाली, हालांकि ये सोशल मीडिया पे ऊपर नीचे का क्या फर्क होता है, ये कोई एहतराम तो नहीं, लेकिन एक बंदे की रिस्पेक्ट होती है ना, अपने से बड़ों को इज्जत दे रहा है, मैं यूं ना उन्हें ऊपर वाली स्क्रीन पे कर दिया करता था। ये बाकी मलिक इमरान वगैरह इनको सबको नीचे, उनको मैंने ऊपर वाली सीट पे रखना कि यहाँ पे आप दोनों बराबर बैठे, मैं नीचे आ जाऊं। एक छोटा छोटा एक प्यार का जेस्चर, मेरे मुंह पे ब्लॉक मारा है उन्होंने, वजह तक बताना गवारा नहीं की। आहिर भाई ये बात ठीक है, लेकिन ना जब चीजें रिपीट होती है ना, ये जो चीज जिसके खिलाफ अलामा साहब है ना, ये चीजें बहुत दफा रिपीट हो चुकी हैं और इस रेपिटेशन में इंसान को गलती भी लग जाती है। भाई एक बात से करूंगा, ये बिलाल को बड़ी दफा ब्लॉक किया है, बिलाल को बहुत मुझे किया है यार, हालांकि मेरे मुंह से
किसी आज तक किसी और 101 दफा ब्लॉक किया है, बाद में आया मैंने मॉनिटर तक बनाया। पूछ लें, आप आते हैं, आपको इज्जत देते हैं, आपको मॉनिटर बना देता हूँ, इसको बना आप देता हूँ। सब भाई हैं, तो इस क्या ब्रॉड करें पे बंदा? जितने लोग बैठे हैं सब भाई हैं, सब मुसलमान हैं। मुझे किसी एक की नीयत में भी शक नहीं है कि मुसलमान होने के हवाले से। और मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि सब जो है ना खत्म नबूवत के। मैं कल के दिन आहिर भाई ब्रॉड पे भी नहीं था, मैंने अपनी वो 74 वाली प्रोसीडिंग भी नहीं पढ़ी। कल के दिन मैं बिजी था और मुझे खबर ये मिली कि कल कोई बंदा माशाल्लाह अहमदी से मुसलमान हुआ उस प्रोसीडिंग की वजह से या किसी वजह से। तो मुझे इस बात का भी आज पता चल रहा है। अगर मुझे कल पता होता तो मैं कल ही लामा साहब से या आपसे बात करता। और मैं आपको मशवरा ये दूंगा, एक छोटा भाई होने के हैसियत से, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं, आप इस बात को प्राइवेटली लामा साहब से डिस्कस कर लें और इंशाल्लाह ये गलतफहमी है तो ये खत्म करूं, कैसे करूं? ना बात का जवाब देते हैं, ना वो रिप्लाई करते हैं, ना वो बात सुनते हैं। उनका नंबर नहीं है आपके पास? नहीं, मेरा व्हाट्सएप बंद है ना। यही तो खूबसूरती है कि मेरे पे लेबल कोई लगा नहीं सकता। बाबर का मेरा पर्सनल राब्ता था, आपको पता है, और बड़ी अच्छी दोस्ती थी, है, रहेगी। जब ये फड्डे हुए ना इन लोगों के, मुंह पे बैठा है बाबर को पूछे, मैंने इसको कहा कसम उठा के बताओ, मैंने व्हाट्सएप पे पहले मैं वो काम करता था, फैज डार को पहले मैंने ब्लॉक किया, बाबर भाई को, फिर मैंने व्हाट्सएप ही खत्म कर दी। बाबर भाई बताए ना यार मैंने ये किया कि नहीं किया, बताए ना। 100% क्या हुआ है? बाबर ने मेरे खिलाफ एक भी फ्रॉड लगाई है कि हीर ने मुझे ये किया, यूं किया, कोई इसने किया मेरे खिलाफ? क्योंकि उसको पता है यार इस बंदे की। और किसी ने जाके बाबर को बताया कि ना उधर ना अहीर की ब्रॉड पे ना तुम्हारे खिलाफ बात हुई है। बाबर ने कहा मैं ये नहीं मान सकता, ये हो ही नहीं सकता, अहीर बैठा हो वो किसी दूसरे, मेरे नहीं किसी के भी खिलाफ बात होने दे। और वल्लाह मैं मकान बनवा रहा हूँ, घर बनवा रहा हूँ, मुझे वो कॉन्ट्रैक्टर की कॉल आई थी कि वो ना वो ट्रॉली लेके आ रहे हैं उसकी रेत की, वो डालनी है, वो उतरवा दो। अल्लामा साहब गवाह हैं, मैं इनके हवाले ब्रॉड करके गया था कि मैं जा रहा हूं, मैं वो ट्रॉली उतरवा के 20-35-30 मिनट का सफर है, मैं वापस आता हूं। उससे पीछे कोई बात हुई है, मैं था ही नहीं। बाबर ने मेरी पीठ पीछे गवाही दी, उसने कहा कि यार नहीं, अहीर ये काम नहीं कर सकता। एक ताल्लुक, अच्छा बाबर का सिर्फ मेरा 6 महीने का ताल्लुक था, इधर ही टिकटॉक पे दुआसलाम हुई। अल्लामा साहब से 12 साल का कोई ताल्लुक बनता है तकरीबन, कब से व्हाट्सएप दौर के ग्रुपों से जानते हैं। किसी एक चुगलखोर की बात के ऊपर अल्लामा साहब ने उठा के बाहर फेंक दिया, उन्हें नहीं, ये नहीं कर सकता। आहिर भाई मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले बताया, देखिए इंसान है ना, हम फरिश्ते तो नहीं है ना हमारे पास। बिलाल भाई मैं क्या हूं? हमें बिलाल भाई मैं फरिश्ता हूं? सुन ले मेरे पास फैज डार रोज मुझे भेजता है रिकॉर्डिंग्स, सुन ले ना। जब से मैंने व्हाट्सएप बंद किया तब से वो सिलसिला सुने। मैंने उस बंदे को पब्लिकली कहा है ना, मैंने उसके सामने कहा है, वो मान के गया कि हाँ मैं बेचता था आपको, सबकी बेचता था मुझे। वो ये नहीं कि सिद्धू जाट अकेला रिकॉर्डिंग लेके घूमता है, वो भी लेके घूमता था। मैंने आज तक जितना मर्जी कुछ मुझे, मैंने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, फ्रंट सीट पे अल्लामा साहब को बिठाया, मॉडरेटर बनाया अपनी ब्रॉड पे। देखे यार मैं जवान था, मैं यंग था, खून तो मेरा उछलना चाहिए था। भाई कोई तौहीन हो गई है, चुप के मार अल्लामा साहब नु थल्ले कर दे, बैन कर दे, ब्लॉक। मैंने तो नहीं की हरकत। नहीं यार बड़े हो के बच्चों वाला काम यार बिलाल भाई, हद होती नहीं, नहीं 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 बच्चों वाली बात नहीं। देखिए हमें है ना यार, हमें नहीं 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 यार हमने देखे आमन नज़ीर साहब के आहिर भाई आपकी बात जिस हद तक ठीक है ना, मैं उसको मान रहा हूं। अल्लामा साहब के नाम का कलमा तो पढ़ा नहीं है कि तौहीन हो जाएगी, मैं इतना कह रहा हूं। मैं अभी तक इस बात पे स्टैंड कर रहा हूं। फिर अल्लामा साहब ने ब्रॉड बंद कर दिया। अल्लामा साहब के पास सुन ले, कोई तरीका है ये ब्रॉड बंद कर देने का? आप मेरे मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लामा अमर नज़ीर साहब ये जो बात आपको बताई है वो बंदा पकड़े। किसने आपको कहा कि हीर ने मुसलमानों को कहीं पे बैठा है जहां पे गालियां दी जाए और ये बीच में बैठा? नहीं वही बात अफजल वड़ैच की। अफजल वड़ैच इज एक्सेप्शन मेरे ख्याल में। हर कोई उसके बारे में बात करता है और इसके ऊपर कोई किसी को बयान नहीं करता। अल्लामा साहब खुद 2 घंटे अफजल वड़ैच से मत्थामारी करते रहे। तो मैंने अगर अफजल वड़ैच से बात कर ली है तो कोई गुस्ताखी मेरे ख्याल में नहीं होगी। नहीं हीर भाई किसी एक मिनट बिलाल भाई कुछ गलतफहमी हुई है और कुछ नहीं है। बैठे हुए थे ना उधर, मेरी बात सुनने में बिलाल भाई मैं बिजी हो गया। हाँ जी बताएं ना। जब आप उधर बैठे हुए थे ना, उन्होंने बोला था कोई बंदा वो बराड़ वहाओ मनु चलाओ, उन्होंने चलाई थी। तो जो बंदा बैठा होता कहना कोई भी बंदा जेरे उत्थे बैठे ने ना ऐसा बराड़ ना होवे ते ना चुके। अली अहमद भाई ये बात मेरे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफरों के बीच में बैठे होते थे मक्के में। क्या बातें कर रहे हैं? आपके बैठने से बंदा ठीक है ना, आपके सामने उन्होंने मुझे नहीं बोला कि तू पीर स्कानी दे बराड़ दे गए हैं उनको ये कोई इस्लामी असूल तो नहीं है ना कि भाई अगर कहीं अच्छा पीर स्कानी के तो मैं गया ही नहीं। मजे की बात है यार, अपनी बात कर। उन्होंने मुझे भी बोला, इनकी वहां पे भी लड़ाई चल रही है। ये बात रिपीट करेंगे ना, ये बात वही है कि अल्लामा साहब को। अच्छा फिर ठीक है कि आप प्लीज, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नहीं है, आप अल्लामा साहब को 2 मिनट बुला दें, मैं उनसे 1 to 1 बात करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट कर दें, पाँव पड़ के रिक्वेस्ट कर दें। भाई की ब्रॉड है, पहले भी आ जाते हैं, आज भी आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। उन्हें किसी बंदे पे एतराज है कि इसके बैठे मैं नहीं आऊंगा, मैं सबको नीचे उतारता हूँ, नो प्रॉब्लम है, और कोई भी माइंड नहीं करेगा।
मैं उतारता हूँ अफजल वड़ैच को सबसे पहले, उन्हें कहीं आके मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया, अभी भाई मेरी नजर में ये हुआ है, मैंने आपको नहीं देखा कभी गाली देते किसी मुसलमान को, आपने बल्कि हर जगह पे मुसलमानों को, शुएब रजा हो, मुझे हो, दूसरे भाई, आपने सबको सपोर्ट किया। अल्लामा साहब